Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Digital Ek Level Engineering, and we are learning dynamics of machinery for the mechanical engineering, and it's the same subject for the automobile engineering, and its name is mechanical vibration. So today I'm going to start a new module, that is a free damp vibration. It is a fourth module for the mechanical branch, and it's a third module sorry, it's the second model for the automobile engineering. So let's start. But before starting this model, इसका weightage मैं आपको साथ discuss करता हूँ. Its weightage is around minimum 15 marks and it's up to 20 marks. So this is a it's a very most important model as a theory point of view as well as numerical point of view. Okay, so let's start. So I'm going to share screen with you. Okay, what do you mean by free damp vibration? Free means what? The force is not given and force is also not asked. Therefore, it's a free. It means there is only initial displacement or initial force is required. Therefore, it's a free vibration. And second one is the damp vibration. Damp means damper is present. So, what's the function of damping? Damper, it's a component which restricts the motion, which restricts the vibration. So, there are three types of damping. First is a viscous damping. If I use viscous oil, so I have drawn the diagram of damper. So there is it's just like a piston cylinder arrangement. Okay, below piston there is a viscous oil and small pores are present on the piston. So वहाँ पे pores available हैं. तो जब भी वहाँ पे shock produce होगा, where the so piston will move downward or upward. Therefore, but viscous oil क्या है? आपको पता होगा liquids are the incompressible in nature. So viscous oil cannot be compressed. Okay, but due to the small pores it will move upward. Okay, so what will happen? So on the upper side of the piston, so viscous fluid will start the applying the pressure towards the downward. So जिससे क्या होगा, नीचे का ऑयल compress होके ऊपर आएगा through the small pores और वो क्या करेगा, piston के upward layer पे force apply करेगा. Therefore pistons will move downward slowly slowly slowly. During this, because of frictional force, the heat energy will be dissipate. Okay, so मतलब वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जो अप्लाई हुआ था, वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो एनर्जी क्या होगा, डिसिपेट होगा. गॉट इट. सो लेट्स सी, देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स. as we know as we know spring force is a kx. So similarly damping force fd is equal to ch dot. So don't forget about this. C indicates damping coefficient and x dot indicates velocity. So fd is equal to ch dot. Okay, so we can say damping force is directly proportional to the relative velocity. So this was the example of viscous damping. So there is a second type of damping is a Coulomb damping. So there is no need of any special damper or special components here. There is a simple one mass is attached to the spring. Okay, but this mass is in contact with the surface. So therefore, if I apply the force on this mass towards the left side, then friction force will generate towards the right side. And this frictional force will oppose the motion of this mass. So it will also act as a damping. And this type of damping is called as the Coulomb damping. Okay, or frictional damping. So here frictional force is equal to mu normal reaction Rn. Rn indicates the weight of this mass. So mu mg. ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ डैम्पिंग पे. तो आपको ये ड्रॉ करना है, आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे मैंने काफी शॉर्टकट में दिया हुआ है कि आप समझ जाओ, बट इसको उसको एलोबरेट करना होगा. ओके, और सेकंड थिंग इज दैट कि आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल्स को, तभी भी इसका हेल्प होगा. सो
Third damping is the eddy current damping. So eddy current, there is a north pole and south pole, and between these two poles there is a ferrous material which moves up and down, up and down, up and down. Okay, so because of attraction between north pole and south poles, so magnetic field is generated. Okay, when I move this non-ferrous material up and down, so what will happen? So EMF will induce into this non-ferrous material, sorry ferrous material. So क्या होगा? So because of magnetic field वहाँ पे EMF induce होगा इस ferrous material में, और जैसे EMF जहाँ पे induce होता है वहाँ पे current भी produce होता है. ये it's a vice versa. If I induce the EMF, then current will produce. If the current is supplied, then EMF will induce. Okay, so it's a vice versa. So वहाँ पे होगा क्या? So current induce होगा. Sorry, EMF induce होगा तो EMF के वजह से वहाँ पे current produce होगा. But this current having a no particular direction. Generally, current flows from high voltage to low voltage. But here, which is not possible here. Okay, therefore it's called as the eddy current. And then what will happen? Because of these currents, new magnetic field is generated, and this new magnetic field will oppose to the previous magnetic field. ओके, सो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगी, पुरानी वाली और नई वाली, और जिसके वजह से क्या होगा, इसका जो मोशन था अप एंड डाउन, इट विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस. सो अगेन मोशन को क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन. So this type of damping is called as a eddy current damping. Got it? So this question comes under the theory, and there is no any relation with numericals. Next, hysteresis damping. Generally, we have learned that stress is directly proportional to the strain. This is a theoretical law, but in actual, when I applied the force, the material starts elongating. अब मैं अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज होगा. स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वो इलोंगेट, डिफ्लेक्शन, या तो फिर उसको बोलते हैं अगर वहाँ पे चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, सो वहाँ पे उसको डिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए वो सम एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. फॉर द एग्जांपल, सपोज आपके हाथ में एक स्केल है, उसको बेंड करो तो वहां पे डिफॉर्मेशन होगा. डिफॉर्मेशन में होता क्या है एग्जैक्टली, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफी दूर जाते हैं, बट ये दूर जाने के लिए वहां पे एक एनर्जी उनको चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल हो गए, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहां पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा. एंड व्हेन आई रिलीज दैट स्केल या तो फिर मटेरियल, सो इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन पोजीशन करने के लिए तो वो क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर किया था वो वापस से सराउंडिंग को दे देगा. सो वहाँ पे एनर्जी गेन हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है. और थ्योरेटिकल में हमने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होता है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लूप फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी लॉस. दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस डैम्पिंग. सो गाइस, ये डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो आपको वर्ड्स में लिखना है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा. नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम्पिंग फैक्टर. गाइस, जैसे कि हमने देखा था कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, केक्स होता है, वैसे डैम्पिंग फैक्टर इज डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग कोएफिशिएंट. ओके, एफ डी इज इक्वल टू सी एच डॉट. तो यहाँ पे डैम्पर्स के भी काफी टाइप्स हैं. सबसे पहले है अनडैम्प. अनडैम्प मीन्स डैम्पर ही नहीं है. सेकेंड है अंडर डैम्प, मीन्स डैम्पर है बट इतना विच इज नॉट अ मच पावरफुल. क्रिटिकली डैम्प मतलब ये आइडियल डैम्पिंग है. ओवर डैम्प मीन्स काफी ज्यादा डैम्पिंग है. फॉर द एग्जाम्पल, ये आपको केसेस समझना है तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज डोर है, और डोर को हमने क्या किया, सपोज वहां पे डोर के पीछे एक स्प्रिंग अटैच है, मैंने डोर को ओपन कर दिया, और सपोज वो डोर का सिस्टम ऐसा है कि डोर कैन मूव इनर साइड एंड आउटर साइड. आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होगी तो पुलिस स्टेशन के छोटे छोटे डोर्स पे विंडो के साइज के डोर्स लगे होते थे, so which can move outer side and inner side.
ओके, वो आपको याद आया होगा तो आपको ये एग्जांपल काफी समझ में आ जाएगा। अंडर डैम मीन्स वहां पे डैम्पर तो प्रेजेंट है, बट जो उसका मोशन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस चलते रहेगा। समटाइम्स वो इनर साइड में आएगा, समटाइम्स इट विल मूव आउटर साइड, समटाइम्स इट विल कम इनसाइड, देन इट विल अगेन मूव आउटसाइड। वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा और कहीं पे जाके स्टॉप होगा, तो इसको बोलते हैं अंडर डैम। तो अगर मैं उसका ग्राफ शो करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ अगर आपको दिखाता हूँ तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर डैम की। अंडर डैम में आपको शो करूंगा रेड पेन से। ओके, अंडर डैम रेड पेन से। सो अंडर डैम मीन्स यहाँ पे जो अभी यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब मैंने डोर को क्या कर दिया, मतलब स्टॉप वॉच मेरा ऑन कभी हुआ जब मैंने डोर को डिस्प्लेस कर दिया। तो वो समटाइम्स वो क्या रहेगा, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से फिर अपोजिट साइड में जाएगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, फिर अपोजिट साइड में जाएगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। इट विल टेक सम टाइम टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब डैम्पर तो है बट इट विल टेक सम टाइम, वो इतना मच स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट होता है क्रिटिकली डैम। क्रिटिकली डैम मीन्स अपने ऑफिस के डोर्स एक बार ओपन कर दिया वो स्मूथली आके क्या होगा, मेन पोजीशन पे स्टॉप होगा। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ग्रीन कलर। ओके, सो क्रिटिकली डैम मीन्स मैंने डोर को तो ओपन कर दिया, वो वो वाइब्रेट नहीं होगा, इट विल स्लोली इट विल कम टू इट्स मेन पोजीशन। ओके, सो वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्रिएट ही नहीं हो गया, वो डायरेक्टली क्या होगा, मेन पोजीशन पे आके स्टॉप होगा। नेक्स्ट है ओवर डैम। तो ओवर डैम के लिए मैं कुछ और कलर यूज करता हूँ। ओके, ओवर डैम मीन्स व्हाट, मैंने डोर को तो ओपन कर दिया बट वो मेन पोजीशन पे आने से पहले ही स्टॉप हो गया। मीन्स मैंने डोर को ओपन कर दिया, वो मेन पोजीशन पे पूरे जिंदगी भर करने कभी नहीं आएगा, वो मेन पोजीशन पे आने से पहले वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो उसको बोलते हैं ओवर डैम। गॉट इट। अंडर डैम मीन्स वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो गया। क्रिटिकल डैम डायरेक्टली इट विल कम टू इट्स मेन पोजीशन, and over dams it will never come to its original position, and undam is there is a no damper। अगर डैम्पर ही नहीं है तो इट मीन्स nobody will oppose him, so उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो वो भी मैं आपको शो करता हूँ ब्लू कलर से। सपोज देयर इज अ नो एनी रेस्ट्रिक्शन, सो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, ना तो वो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, वो चलते रहेगा। ओके, गॉट इट। अनडैम मीन्स नो डैम्पर। अंडर डैम इस तीनों केस में डैम्पर है। अंडर डैम इट विल create some simple harmonic motions. Critically damped, it will come to its directly to its mean position. Over damped, it will never come to its original position. Okay, I hope ये आपको समझा होगा, कलरफुल है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है झाई। झाई का टर्म, झाई इज नथिंग बट उसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर या तो फिर डैम्पिंग रेशो। डैम्पिंग रेशो। ओके, और डैम्पिंग रेशो कहाँ से आता है, सी अपॉन सी सी। सी सी मीन्स क्रिटिकली डैम, जैसे कि बोला था ना हमने आइडियल होता है, तो सी सी मीन्स क्रिटिकल डैम, और सी मीन्स एनी वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जाई। इफ द जाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स वहां पे डैम्पर है ही नहीं, तो वो क्या होगा, अनडैम। इफ द वैल्यू ऑफ सी सी, नॉर्मली सी सी का वैल्यू वन ही होता है, अगर न्यूमरेटर इज लेस देन वन, if the numerator is less than denominator then value of xi will becomes less than 1। so ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे, अंडर डैम। मतलब 0 पॉइंट समथिंग में आपको कुछ आंसर आया तो समझ जाना अंडर डैम। अगर आपका xi सी और सी का वैल्यू दोनों सेम है तो इट विल कम
इज इक्वल टू 1, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डैम्प. एंड ओवर डैम्प मीन्स सपोज न्यूमरेटर the value of c is much greater than cc, then it is called over dam. Okay, so यहाँ पे एक डेरिवेशन है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, जिसका यूज होता है हमें कहाँ पे होता है, न्यूमेरिकल्स में, और इसके ऊपर डेरिवेशन भी आता है. सो आज के हम पार्ट में हम सिर्फ क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे. लेट्स सी. देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एक्चुअल वाइब्रेशन कहाँ पे होता है, एक्चुअल वाइब्रेशन होता है अंडर डैम में. तो ये वहीं पे हम देख रहे हैं. यहाँ पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, सपोज दिस वैल्यू इज अ 4 एंड दिस वैल्यू इज अ 3, दिस वैल्यू इज अ 2, मीन्स वहाँ पे डिक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 1 1 से. 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. बट यहाँ पे रेशियो होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉग. ओके, तो यहाँ पे डेल्टा, उसको इंडिकेट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से. डेल्टा इज इक्वल टू ln ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय नेक्स्ट एम्पलीट्यूड. ओके, बट ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजिशन, x0 by x1. तो यहाँ पे जितना डिक्रीमेंट होगा उतना ही सेम डिक्रीमेंट सेकेंड साइकिल में भी होगा. ln of x1 by x2, it will goes up to xn minus 1, मीन्स लास्ट वाला साइकिल क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, xn, तो उसका इनिशियल क्या पहले क्या रहेगा, xn minus 1. सो वो क्या रहेगा, डिक्रीमेंट सेम रहेगा. अगर मैं इन सबका एडिशन करता हूँ तो लॉग में क्या होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा. ओके, तो मैंने क्या किया, सबका एडिशन किया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एन डेल्टा. ओके, और लॉग का अगर एडिशन करता हूँ तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है. सो x0 by x1 into x1 by x2 into x2 by x3, so it will move up towards last cycle xn minus upon n. So x1 will get cancelled, x2 get cancelled, even xn minus 1 xn minus 1 will get cancelled. बचेगा क्या, initial and last x0 by xn. और यहाँ पे क्या था, n delta, so n will go here, so delta is equal to 1 upon n ln of x0 by xn. तो ये फॉर्मूला काम का है जो हमें यूज होगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का. अगर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 upon n ln of x0 by xn. x0 means initial amplitude, xn means last amplitude, n means number of cycles. Next derivation for the linear decrement of vibration for Coulomb's damping. Coulomb means frictional force. तो यहाँ पे एक मास है, सरफेस के साथ वो कॉन्टैक्ट में है, and spring is attached with this mass. Suppose if I move this mass towards the right side by distance x, so what will happen? There will be spring force will generate in opposite side towards the left side. It will be x0. x0 indicates initial amplitude. Okay, after some time I will release it. So what will happen? It will move from right side to left side. Okay, so next amplitude will be xa, because it's only just a half cycle. Initially it was at a right side, then it comes to left side. It means it has completed only half cycle. Again, when it will move towards the right side, then new position will be xb. Okay, so let's see potential energy of the spring. What's the formula of the potential energy of the spring? That is the half kx square. But for the initial displacement, so half kx0 ka square. Potential energy at position xb after one cycle, half kxb square. But it's for the, okay, sorry, potential energy at xa. देखो xa क्या है, हाफ साइकिल ही तो हुआ है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर द हाफ साइकिल. सो यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी लॉस कितना हुआ. इनिशियली कितना था, x0 पे था, बाद में कहाँ पे हुआ, xn, तो हाफ के x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सिंपली क्या किया है, लॉस निकाला, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, तो एनर्जी कहीं पे तो कंज्यूम हो रही है, तो वो लॉस होने ने क्या किया, काउंट किया. बट ये लॉस कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो कहीं पे तो कन्वर्ट हुआ होगा, तो वहाँ कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन. वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है. फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x0 प्लस एक्स है. देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे था, x0 पे था राइट साइड में, फिर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में कितना हुआ, x है.
सो वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x0 प्लस एक्स है, गॉट इट। सो मेरा एनर्जी लॉस था हाफ के एक्स जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x0 प्लस एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, x0 प्लस एक्स है, x0 प्लस एक्स विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, हाफ के x0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ आर। सो टू विल गो देयर, तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ का k वहाँ पे आके डिवाइड होगा, बट दिस फॉर्मूला इज फॉर हाफ साइकिल। सो अगर मैं कंप्लीट साइकिल को कंसीडर करता तो मुझे 2 FR अपॉन के नहीं आएगा, वो क्या आएगा 4 FR अपॉन के। इट इज नथिंग बट क्या, x0 माइनस एक्स वो इंडिकेट क्या करता है, डिक्रीमेंट। सो अगेन मुझे एक नया फॉर्मूला मिला लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर द कूलम्ब डैम्पिंग, दैट इज 4 FR अपॉन के। एंड आल्सो x0 माइनस, अगर मैं यहाँ पे x0 माइनस एक्स है, ये तो फर्स्ट साइकिल के लिए हुआ, अगर मैं n नंबर ऑफ साइकिल कंसीडर करता हूँ तो x0 माइनस एक्स एन इज इक्वल टू n डेल्टा। सो ये दो फॉर्मूलाज काम के हैं। अभी तक हमने डेल्टा देखा 1 अपॉन एन ln ऑफ x0 बाई एक्स एन, बट अगर बात करते फ्रिक्शन की, कूलम्ब डैम्पिंग की, तो एक नया फॉर्मूला मिला, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR अपॉन के, और तीसरा फॉर्मूला हमें मिला एन डेल्टा इज इक्वल टू x0 माइनस एक्स एन। सो गाइज ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपको खेलना है, काफ़ी आसान है, डोंट वरी, सबसे मस्त चैप्टर ही है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स मैं बोलूँगा आपको इसको रिवाइज करो एक बार वंस अगेन, और मैं सेकेंड वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स पे बनाता हूँ। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर, फिर जो 8 न्यूमेरिकल्स है मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और 2 वीडियो सेशन देखते हैं। सो लेंदी नहीं होगा और बोरिंग भी सेशन नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, goodbye.